Yeah, that sounds good. Let's start now. Right. So, happy Women's Day for everyone. Those who are present here, all lovely ladies. So, on February 23, 1908, 15,000 women marched for voting rights and equality. And a year later, the Socialist Party of America decided to commemorate the protest every year as Women's Day. On 8th March 1917, thousands of women marched in Russia to protest food shortages and demand an end to World War I. This protest eventually led to the overthrow of the Tsar, marking a watershed moment in politics for women. Since then, on 8th March every year, the International Women's Day is observed to celebrate the achievements of women in social, culture, political, and economic spheres. To mark such a momentous occasion, IDCF brings you two trailblazers in the sports arena for the Union Territory of Jammu and Kashmir. The lovely Sarala Devi and the vicious Bhavandeep Kaur are present with us today. Sarla Devi made her debut for the state in 2010. She's a right-hand batter and left-arm medium-pace bowler who was the first woman from Jammu and Kashmir to be selected for the BCCI's Challenger Trophy in 2021. Bhavandeep Kaur is a right-hand batter at the under-19 level who made her debut for the state in 2021 and was also called up to the BCCI's Challenger Trophy in the same year. A very warm welcome to these two exciting talents. We're really, really excited to have both of you here. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I will start asking few questions. The first question would be for Miss Sarala Devi. What is your earliest memory of cricket? सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल. Good evening. एक्चुअली मुझे मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे क्रिकेट का गर्ल्स क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं था. तो मेरे एक गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि गर्ल्स टीम होती हैं तो आप खेलना शुरू करो. तो आई वाज श्योर कि गर्ल्स टीम भी होती है. तो मुझे अभी तक वो ऐसे रहता है कि शायद गुरुजी नहीं बोलते तो मैच क्रिकेट में नहीं होती. तो वो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए एक लकी मोमेंट था उस टाइम जब उन्होंने मुझे प्रोफेशनली खेलने के लिए बोला. Right. So nice to hear. And what is your earliest memory of cricket, Bhavandeep Kaur? Would you like to share something? Yeah. Yeah, as I remember my first cricket memory, I was, I guess, nearly 6 or 7 years old. My parents brought a doll for me and a plastic bat for my brother. And I still remember I took away that bat from him and asked him to ball me. That's how I started playing from that. Wonderful. I mean, it's so nice to hear. Okay, and the second question for Sarla Devi. What is your first cricketing you owned or someone bought for you? What was it? Have you still preserved it? आपके पास अभी भी है? यस, मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे फर्स्टली सबसे पहले मुझे किट प्रोवाइड किया था और अभी भी वो मैंने संभाल के रखा है. अभी बैट मैं कभी कभी वो यूज भी कर लेती हूँ. अभी तक मैंने उसको सब हर चीज उनकी संभाल के रखी है. उन्होंने फर्स्टली वो क्रिकेट का एक जैसे फर्स्ट टाइम किसी को मतलब जी सब गिफ्ट किया था. Super. So the अगला question है, growing up, did you play a lot of cricket in the streets or medians? What was the funniest incident you can recall playing gully cricket? ऐसा तो गली क्रिकेट का ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था. अभी कुछ माइंड में है नहीं है. और कोई फनी इंसिडेंट ऐसे आपके जो आप शेयर करना चाहो, जो फील्ड में भी हुआ होगा?
फील्ड में तो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ फील्ड में होता ही है। मैचेस के टाइम ऐसा कभी हो जाता है, फील्डिंग के टाइम तो अभी काम टाइम में नहीं है। बहुत ऐसा रहा कि हम एंजॉय करके बहुत खेला है, मतलब किसी ना किसी, ये नहीं है कि आप अंदर गए हो स्ट्रेस ले रहे हो तो आप ऐसे चुपचाप खेल रहे हो, वैसा नहीं। एक दूसरे को किसी न किसी बात पे छेड़ना, मतलब वो एंजॉय करना मोमेंट, तो वो हम हमेशा किसी ना किसी बात को लेके एक दूसरे को मतलब फनीएस्ट रहते हैं फील्ड के अंदर। So nice to hear. And do you have any memory that you would like to share, Bhavdeep Kaur? Actually, I don't have any memory of playing on streaks, so no Okay. fun moment either. You must be very strict over. So, what did you love more, batting or bowling? Who was your inspiration? This question is for me. Both of you, I mean, you can interact. I mean, Yeah, I'm a batter. Obviously, I love batting, and MS Dhoni is my inspiration. His calmness inspires me. awesome, awesome. So, yes. You were saying something? यस, मैं अपना बता रही थी बॉलिंग का। मुझे जहीर खान का एक्शन बहुत पसंद था, बिकॉज वो लेफ्टी थे, तो वो मुझे जब मैं देखती थी उनकी बॉलिंग, तो मुझे ऐसा होता था कि मैं भी ऐसी कभी बॉल डालूं, लाइक उनको देख के थोड़ा मैंने अपना एक्शन वैसा चूज किया था। So you try to play like that also. Nice. So over to you, Lalitya. Yeah. सो आपका जो बॉलिंग का इंस्पिरेशन आपने बोला कि जहीर खान है, लेकिन आपका बैटिंग का कौन इंस्पिरेशन है? मुझे सचिन तेंदुलकर का बहुत, मतलब शुरू से जब स्टार्टिंग बचपन से, जब मेरे पापा को भी बहुत इंटरेस्ट था ये मैच का, क्रिकेट का, तो जब वो मैचेस आते थे टीवी पे, तो वो उनका एक नाम था कि सचिन बैटिंग कर रहे हैं, तो तब हम उन्हीं के ज्यादा मतलब उनको देखते थे कि कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो बस उन्हीं को देख देख के थोड़ा सचिन तेंदुलकर तो हम सबके इंस्पिरेशन है, चाहे हम क्रिकेट खेले या ना खेले। आई थिंक ये देश में सभी के लिए वो इंस्पिरेशन रहे हैं, तो इस बात के लिए सचिन को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए हम सबको। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको कब लगा कि आप क्रिकेट को खाली एक हॉबी की तरह नहीं, लेकिन प्रोफेशनली भी खेल सकते हो? ऐसा आपको पहली बार कब लगा? बताया ना कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट का ना, तो बचपन से वही अपने कजन के साथ घर पे गली क्रिकेट खेलो, बस इससे ज्यादा नहीं था। तो मेरे गुरुजी ने जब मुझे देखा था खेलते हुए, तो उनको ही लगा, तो तभी मैं शायद इस फील्ड में आई, कि जब मैंने एक दो शॉट्स ऐसे लगाए कि उनको लगा ये ऐसे एक पावरफुल गर्ल है जो लड़कों की तरह शॉट्स खेल रही है, क्यों ना इसको प्रोफेशनली इसको सिखाया जाए। तो फिर उनके कहने पे ही मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया। अच्छा, और बवनदीप, आपने कब सोचा कि आप प्रोफेशनली खेलना चाहोगे? As I remember, when I played for state team for the first time, that's when I thought this is what I'll do in life. Okay, that's nice. तो जब आपने सोचा कि आप क्रिकेट को एक करियर की तरह चूज करेंगे, तो आपके घर में मनाना आपके लिए इजी था? हाँ, इजी था, बिकॉज पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनको खुद भी इंटरेस्ट था स्पोर्ट में, तो कोई मुश्किल नहीं हुई इतनी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ना पहले ऐसे गेस्ट हो हमारे पॉडकास्ट में जो बोला है कि हमारे घर में बोलना इजी था। आप जब आज तक जो भी आए ना, उनके घर में बहुत परेशानी हुई उनको मनाने के लिए, तो आपके घर वालों को तो दाद देनी चाहिए। क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर ऑलरेडी पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, तो मेरा भी वैसा था कि मुझे भी
कुछ ना कुछ मतलब स्पोर्ट्स ही ज्वाइन करना है। क्रिकेट का नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी थोड़ा जब बड़ी हो जाऊंगी, वो बोलते थे कि हाँ क्रिकेट मतलब आपको भी एक गेम चॉइस करनी पड़ेगी खेलना, लाइक ऐसा। तो फिर वो उनको जब पेरेंट्स रहते हैं ना कि अगर बड़े खेल रहे हैं तो छोटा जो चाहता है उसको भी वही करने दो, तो वो चीज इजी रही मेरे लिए। अच्छा अच्छा, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है ना कि आपके घर में अगर कोई और भी स्पोर्ट्स में है तो मनाना इजी हो जाता है। जी जी। और पवनदीप, आपके घर में भी इजी था मनाना? हाँ जी बिल्कुल इजी था। वो उन्होंने मुझे हर फील्ड में सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए इजी था उनको मनाना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अम, और एक लेडी होने, एक वुमन होने के नाते आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आई इन टर्म्स ऑफ या कोचिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर प्लेइंग के अपॉर्चुनिटीज़ हो, जब आपने सोचा कि आप क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना चाहोगे तो आपको कैसे चैलेंजेस आई? रिपीट द क्वेश्चन। नहीं, जब आपने सोचा कि आपको क्रिकेट खेलना है। बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेडियम और घर का डिस्टेंस, क्योंकि ओके। मेरे को कम से कम 20 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था। तो वो जो साथ साथ लाइक मतलब इवनिंग में जैसे घर पे लेट हो जाना, तो वो थोड़ा मुझे फेस करना पड़ा क्योंकि स्टेडियम बहुत दूर था। तो मुझे ऐसे हमेशा फील होता था कि मैं एक अकेली लड़की हूँ जो इतनी मतलब रात के 8 बजे अकेले घर जा रही हूँ। तो वो मन में थोड़ा ऐसा रहता है ना कि मतलब एक डर फील, थोड़ा डर तो रहता है लड़की के लिए। तो वो हमेशा मुझे ऐसा होता था कि नहीं, मुझे अभी प्रैक्टिस भी करनी है, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है, रास्ते में अकेले जाना है। तो वो थोड़ा मेरे लिए बहुत एक दिक्कत लाइक वैसा रहा। अच्छा। और वो अभी भी आपको वो दिक्कत है? अभी भी है, बट अभी थोड़ा इजी हो गया क्योंकि तब थोड़ा एज मैटर करती है। आप छोटे, आप तब आप इतने एक्सपीरियंस नहीं रहते हो। अब आप छोटे होते हैं जैसे जा रहे हो, अभी इतना हमें पता नहीं है कि कैसे कैसे हैंडल करना है। जब वो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो फिर वो चीज की आदत बन जाती है, तो वो अभी थोड़ा इजी लगता है। अच्छा। अम, और भवनदीप, आपके आपके जब आपने सोचा कि आपको खेलना, आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? To be honest, I didn't face many challenges, but yes, it is not easy for a woman to play any kind of sport in our society. Also, there are not many opportunities for us. या दैट्स ट्रू। Yeah. तो आपने उनका सामना कैसे किया? हेलो। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि आपने उन चैलेंजेस को सामना करके आप क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? जैसे कि अभी हम धीरे धीरे, जैसे जब मैंने फर्स्ट अंडर 19 खेला, तो वो एक सबके लिए से प्राउड मूवमेंट हुआ कि नहीं, लड़की अंडर 19 नेशनल खेल के आई है। तो वो धीरे धीरे फिर वो हमें, क्वेश्चन क्या था? यही कि आप वो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया आपने? हाँ, एक्चुअली जब वही चीज है कि जब मैंने अंडर 19 शुरू किया खेला, उसके बाद एक प्राउड मोमेंट था घर के लिए भी, और सोसाइटी में भी पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, लड़की अच्छी है, इसने नेशनल खेला है। तो वो फेसेस थोड़े मतलब अपने आप में मुझे ऐसे फील होता गया, नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ, अब थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल रहा है सब जगह। तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता गया मुझे। तो वो जो एक डर था कि नहीं कोई बात नहीं, अगर लोग आगे कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको हटा के पॉजिटिव वे में मैं आगे बढ़ती गई। बहुत अच्छा है। और ठीक है, एक थोड़ा सा लाइट सवाल पूछते हैं। आपका पहला मैच जो आप प्रोफेशनली खेले हो, उस मैच का आपको कुछ याद है?
2010 में मैंने अंडर 19 फर्स्ट मैच खेला था और पंजाब में हुआ था। तो तब मुझे कोई इतना था नहीं कि थोड़ा एक डर रहता है कि ऐसे नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा मैच के अंदर कैसे। तो मेरा फर्स्ट मैच था तो बॉलिंग मेरा तो मेन उस टाइम बॉलिंग का था। तो मतलब फील्ड के अंदर मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अंदर गई थी तो अब मुझे तब अभी बॉल मिला नहीं था बॉल डालना और मैं पूरा ऐसे मुझे मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था कि मुझे बॉल कहाँ डालना है। मतलब एक फर्स्ट ऐसे एक्सपीरियंस कुछ नहीं था तो इतना नर्वसनेस थी मैं उस टाइम कि मुझे बार बार ऐसे हो रहा था मैं बॉल कैसे डालूंगी। तो वो मुझे अभी भी ऐसे याद आता है। और हेलो। हेलो। हाँ, तो भवनदीप, आपका पहला मैच आपको याद है जो प्रोफेशनली खेला? I don't remember exactly, but I guess it was against Chandigarh. ओके। Yeah. I was bowled on very first ball. That's when I told myself that it's time to work hard, and then I started working hard for it. दैट्स गुड। और ये जो 2021 और 2020 में हम सब ऐसे लॉकडाउन में जो थे, उस दौरान आपको आपने क्रिकेट के बारे में या फिर आपने लाइफ के बारे में कुछ सोचा? क्या क्या सीखा आपने ये 2 साल में? ऐसा था कि ये तो सबको ही फेस करना पड़ा इतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो हम प्लेयर्स मतलब लाइक मैं अपना बताती हूँ तो घर पे ऐसे प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रही थी। तो एक प्रैक्टिस हम थोड़ा मैं ऐसा कर लेती थी फिटनेस पे ध्यान दिया कि चलो अगर कभी ना कभी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होके हम वापस ग्राउंड में कभी ना कभी जाएंगे। तो हम क्यों ना अपना मैंने कंटिन्यू रखा अपना फिटनेस। ओके। ठीक है। फिटनेस पे ध्यान देना बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली जो जब हम लॉकडाउन में होते हैं। और एथलीट्स के लिए तो जो फिज़िकल कंडीशन का डिटीरियरेशन होता है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें। अच्छा हुआ कि आपने वो उस पर ध्यान दिया। अगर स्किल वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो एक आपके लिए अच्छी चीज है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस रखो जिससे आप कभी भी ग्राउंड के अंदर कभी भी खेल सकते हो। तो वो चीज माइंड में थी कि नहीं अभी ऐसे नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ घर पे करते रहना है। हाँ, सही है, ये सही बोला आपने। तो जब फील्ड पे आपको सक्सेस या फिर फेलियर मिलता है, आप उसको कैसे कोप करते हो उससे? एक्चुअली हम मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इस लेवल पे खेल रही हूँ अब बस बहुत हो गया अब सक्सेस मिल गई है, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतना मिला है तो हम शायद इससे बेटर कर सकते हैं और जी। उसी चीज को मतलब आगे और सीखूं और कि और अचीव कर सकूं। तो वो चीज हमेशा माइंड में रखी है। तो अगर कहीं फेलियर की बात आती है तो अगर हम ग्राउंड पे चीजें नहीं वो कर पाते हैं लाइक मैच के टाइम कुछ, तो हमें फील होता है कि हम वो चीज नहीं कर पा रहे, बार बार उस चीज पे फेलियर हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई तो चीज है जो हमें बार बार वो फेल कर रही है। तो उन पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी चीज पे वर्क करना है कि जिससे हम आगे के लिए और आगे पहुंचे। तो बस वही माइंड में रहते हैं। सही बोले आप। भवनदीप, आपका क्या स्ट्रेटजी रहता है सक्सेस या फेलियर से कोप करने का? Actually, everybody knows that cricket is a game full of ups and downs. There are some days when we are extremely happy with our performance, and there are also some days when we are totally disappointed. So I try to make myself positive and calm on both the situations. That's really nice. I mean,
dealing with success is I think a lot of people know how to deal with failure because हमको सिखाया जाता है कि अच्छा फेलियर जो है वो परमानेंट नहीं है, आप थोड़ा हार्ड वर्क करो या ये करो वो करो. फेलियर के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं आपको टिप्स देने के लिए कि उससे जूझे कैसे, लेकिन जब सक्सेस आती है ना उसको आप कैसे डील करो वो बहुत कम लोग सिखाते हैं और बहुत कम लोग उसको एक्चुअली सक्सेस को डील कर पाते हैं. और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप इक्वानिमस रहते हैं और सक्सेस को भी आप अच्छे से ही हैंडल कर रहे हो. तो सुचरिता आप कुछ पूछेंगे? Yeah, I would like to ask Davandit Kaur, how do you train if you're in the middle of a busy session and or busy season? How do you recover? Actually, I go to gym daily and work on my fitness. And then the next sessions, I like to visit places and exploring things to recover. This is how I train. And do you have इसके अलावा आपको कुछ और like खाना बनाना या ऐसा कुछ में इंटरेस्ट है? Like would you like to do some? Okay, so this is how you recover. Yeah. Okay, can you tell us at the state level what are the tournaments organized by JWCA in all 3 formats? This question is for me. Yeah, Davandit Kaur. It's fine. Unfortunately, there aren't many tournaments being held as of now, but I hope our association starts organizing events for us in the future. Okay. Okay. So I think let me ask, how involved is the Jammu and Kashmir Cricket Association? जो प्लेयर के वेलबींग और प्रोग्रेस को लेके कितना इन्वॉल्व रहते हैं एसोसिएशन? हेलो जी. हाँ, हम ये पूछ रहे कि जो प्लेयर के प्रोग्रेस और वेलबींग में एसोसिएशन कितना इन्वॉल्व रहती है और स्पेशली ऑफ सीजन में कितना इन्वॉल्व रहती है? जैसे कि अभी कोविड की वजह से पहले मतलब अभी इतना ऑफ सीजन हमारा कैंप वगैरह स्टाफ रहा है, जितना भी कोचेस ट्रेनर्स, तो वो उन्होंने एक पूरा प्लान से अभी जैसे प्लान करके हमें वो अभी भी हमें ऑनलाइन लाइक सारा चीजें करवा रहे हैं. स्पेशली ट्रेनर्स वो हर चीज हमें ऑनलाइन हमारे फिजिकली वर्क पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, स्किल्स पे पूरा ध्यान दे रहे हैं. तो बस अभी अच्छा लग रहा है वो चीज हमें करने में कि हम कहीं ना कहीं अगर कोविड के वजह से अगर हम वो चीज नहीं हो पा रही है लाइक कैंप, तो लेकिन ऑनलाइन हमारा वो सारा सिस्टम प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है. अच्छा, अच्छी चीज़. क्रिकेट कोचिंग को भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और हम ये पूछना चाहते हैं कि विमेंस क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मतलब मेंस क्रिकेट में होता है ना, आपका डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न लीग, सेकंड डिवीज़न लीग, और फिर रणजी होता है, और उसके बाद आप रणजी स्टेट के लिए खेलते हो. तो विमेंस क्रिकेट का वो डिवीज़न कैसा रहता है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में? हमारे जैसे कैंप रहता है, वही कैंप के टाइम हमारा कैंप रहेगा, फिर उसके बाद हमारा वही नेशनल्स के जो मैचेस रहते हैं, तो वही चलता है. Okay. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मे आई आस्क दिस? Can we keep the audience questions at the end, please? Oh, okay. Fine. Thank you. Okay. ठीक है. आप दो जो है आपने हिस्ट्री क्रिएट किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए. आपने आपका जो टीम है अभी सीनियर वनडे ट्रॉफी में भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है. आप ये जो जर्नी है ये टीम की, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
स्टार्टिंग कैंप से बताना चाहूंगी कि इस बार जो जेके से हमने प्रोफेशनली एक एक्सपीरियंस कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ, एवरीथिंग जो हमें प्रोवाइड किया, तो वो कैंप से ही हमें इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर वो कर रहे थे कि हम इस बार कुछ अलग कर सकते हैं। तो जब हम मैचेस के लिए गए तो वो 1 जब हम मैचेस जीत रहे थे, विन कर रहे थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ रहा था। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि कहीं नेगेटिविटी नहीं होने दी हमारे माइंड में कि अगर थोड़ा सा भी कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने अभी बताई, स्पेशली जब आप हमको पता चलता है कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमको अच्छे तरीके से हाँ, तो आप हमारा वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और हम अच्छे से खेल भी पाते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली एसोसिएशन को थैंक यू और दाद देनी चाहिए हमको कि सपोर्ट सिस्टम इतनी अच्छी बनाई उन्होंने। बिल्कुल राइट। अच्छा, ठीक है। हम ये पूछना अब हम कुछ लाइट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सरला जी, आप बताइए, आपके बारे में ऐसा कुछ चीज़ है जो लोगों को सुन के सरप्राइज हो उनको आपके बारे में? ऐसा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरे वालों को क्या पता, वो आइडिया नहीं मुझे। जी, भवनदीप, आपके बारे में? जी नहीं। ओके। और आपके क्रिकेट के अलावा और कोई इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अभी तो हमेशा गेम के बारे में ही ज्यादा सोचा है, तो बाकी कहीं ज्यादा ध्यान। ओके, ठीक है। आप ये एक बता सकते हो कि आज अब जो सिस्टम चल रहा है और पहले जो सिस्टम चल रहा था विमेंस क्रिकेट के लिए, आपको इनमें से कोई डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस तो है बहुत, क्योंकि पहले विमेंस को इतना मतलब आगे मतलब बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब क्रिकेट में देखो, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी टीम कितना स्ट्रांग है, मतलब पावरफुल। तो वो चीज अभी मतलब नीचे से ही, जैसे अभी अंडर 19 से ही वो मतलब हमें सपोर्ट मिल रहा है हर चीज में। बीसीसीआई से भी, स्टेट्स भी, इवन अपनी जो स्टेट्स रहती हैं वो भी अब कहीं ना कहीं गर्ल्स पे ध्यान दे रही हैं कि ये अपनी अपनी स्टेट्स का। तो वो चीज कहीं ना कहीं वुमेन्स को स्ट्रांग बना रही है। अच्छा, और आपका ये विमेंस आईपीएल का क्या ख्याल है आपके माइंड में? ये तो होना चाहिए, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं कि कभी मतलब वुमेन्स आईपीएल होंगे तो हमारी स्टेट से भी और भी मतलब ऐसी गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छी हैं और अच्छा करेंगी अगर वो टीम में आती हैं। हाँ, क्योंकि हमने ये देखा है ना कि आईपीएल आने के बाद मेंस क्रिकेट में एक थोड़ा ऐसे रेवोल्यूशन सा आया है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी कोने से इतने टैलेंट उभर के आ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से विमेंस क्रिकेट का भी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगा ये आईपीएल करने से। अगर गर्ल्स को भी चांस मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी गर्ल्स निकल के सामने आएंगी, जो अभी शायद अभी सामने नहीं है। तो वही चीज है कि होना चाहिए आईपीएल। जी, आई होप, अभी तो बातें चल रही है, बट आई होप कॉन्क्रीटली कुछ करे इसके बारे में बीसीसीआई भी। बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो जल्दी से। जी, और भवनदीप, आपके क्रिकेट के जो जर्नी है, व्हाट इज देयर ए मोमेंट दैट यू वुड लाइक टू रीलिव अगेन एंड अगेन? Getting selected for Challenger Trophy. दैट्स नाइस। और सरला जी, आप ऐसा कोई मेमोरी है जो आपका, जो आप
फिर से बार बार रिलीव करना चाहती हो? अभी जैसे ये चैलेंजर ट्रॉफी का ही है कि हमेशा ही हर सीजन में बेस्ट करूं और चैलेंजर ट्रॉफी खेलूं और बड़े लेवल पे खेल पाऊं। और जब आप चैलेंजर ट्रॉफी में गए तो आपका कोचेस का क्या रिएक्शन था? जिनकी कोचिस हाँ। सब काफी खुश थे क्योंकि मे बी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई वुमेन्स आगे बढ़ी है, तो सबने काफी सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, तो सब बहुत खुश थे। अच्छा, और आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? वो भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि काफी टाइम लगा, मतलब इतने साल जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो जब धीरे धीरे वो चीज हमें मिलना शुरू होती है तो वो तो खुश होते हैं बहुत, वो काफी हैप्पी थे। बहुत अच्छा। और आपके स्टेट के जो जूनियर गर्ल्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज है? जूनियर गर्ल्स से तो यही है कि अच्छा मेहनत करे, अच्छी मेहनत करे, प्रैक्टिस करते रहें, वो भी इस लेवल तक पहुंच सकती हैं क्योंकि बहुत अच्छी गर्ल्स हैं हमारे JNK में, ऐसी बात नहीं है, टैलेंटेड हैं बहुत ज्यादा। तो अगर वो ऐसे ही मेहनत करती रहेंगी तो अगले साल 1 की जगह 5 भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दे और एक फोकस रखें कि हमें कुछ अचीव करना है, हमें कुछ बड़ा लेवल खेलना है। ओके। और एक और क्वेश्चन है जो आई थिंक बहुत पर्टिनेंट है आप दोनों के केस में, क्योंकि आप जो पहले 2 क्रिकेटर्स हैं, विमेंस क्रिकेटर्स हैं जो चैलेंजर ट्रॉफी खेले हैं आपके स्टेट से, तो आपके लिए मेरे को लगता है कि बहुत पर्टिनेंट सा सवाल है। आपको कभी डर लगता है कि आप ये लेवल मेंटेन कैसे करोगे आगे जाके? अब हम चैलेंजर ट्रॉफी में सेलेक्ट हो गए, अब हमको ये लेवल मेंटेन करना है, कैसे करेंगे? ऐसा कभी आपके माइंड में डाउट्स या फियर्स आए क्या? हाँ, मेरे में आया था क्योंकि एक जब आप बड़ा लेवल खेल लेते हो तो आपको अपनी स्टेट में आके इससे और बेस्ट करना है, क्योंकि अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं डाउन, मुझे मतलब हमें ये कंटिन्यू रखना है हम, क्योंकि एक बार जब एक के ऊपर के पीक पे रहते हैं तो हमें ये रहता है माइंड में कि नहीं, अब हम इससे अच्छा करके बताएंगे कि कंटिन्यू हम अगले साल फिर से जाने की कोशिश करें, बड़ा लेवल खेल, तो फिर थोड़ा सा तो माइंड में रहता ही है वो, नहीं कि बेस्ट करना है अब तो और इससे बेस्ट करके बताना है। जी, आई मीन ये मुझे लगता है कि ये जो डर है ना कि अब हमने अचीव कर लिया, अब इसको हमको मेंटेन करना है, ये डर थोड़ा अच्छा डर है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब ये लेवल पे जाके अगर आप कंप्लेसेंट हो जाते हो ना तो फिर इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको आपके माइंड में अगर ये डर है ना तो मुझे लगता है कि आप अचीव ज़रूर करोगे इससे ज़्यादा। राइट। अब हम ऑडियंस से क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई there was someone who wanted to ask a question. I'm really sorry. आप Mr. Nishant was interested. Yes. I mean, we really have nice interactive audience here. So, Mr. Nishant, would you like to proceed with your question? Yeah. Thank you for giving me the opportunity. My question to both of the esteemed cricketers here is, how did they end up in their first cricket academy? मतलब if I put it in हिंदी की, आप लोग अपने पहले क्रिकेट एकेडमी तक किस प्रकार से पहुंच पाए? कोई डिफिकल्टी हुआ, कहीं से कोई सजेशन, या फिर खुद का एनकरेजमेंट, उत्साह मिला लोगों से? वो जर्नी कैसी रही पहले क्रिकेट एकेडमी तक पहुंचने की? I reached through Google. अच्छा. Yeah. So you just googled and finally ended up there, मतलब वहाँ पे जा करके आपने बात की and they selected you, right? Yeah, exactly. Oh, that's really good, nice. And my question is to all the cricketers actually.
मेरा ऐसा था कि मेरे दोनों सिस्टर्स ऑलरेडी प्लेयर्स थे, तो उनके ही फ्रेंड्स थे, सीनियर मतलब उनके क्लासमेट थे, तो जो ऑलरेडी क्रिकेट खेलते थे। तो जब उन्होंने मेरे बारे में बोला कि वो अच्छा क्रिकेट खेलती है बट अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, जी उन्होंने बोला था कि हाँ आप स्टेडियम भेज दो इसको, तो आगे हम देख लेंगे। तो बस थोड़ा सा वहीं से टर्न हो गया और स्टेडियम में पहुंच के। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विश यू लक बोथ ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छा करें, आईपीएल हो तो फिर बहुत नाम रोशन करें आप लोग। थैंक यू। Anyone else had any questions? यस मेरा क्वेश्चन था कि बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट था, वो कैसे इनबिल्ट हुआ, कैसे आया? और एक लड़की होने की वजह से क्या आपको कभी क्रिकेट खेलने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में कोई मुश्किल आई? क्योंकि ये तो एक टीम गेम होता है। सो दैट वाज माय क्वेश्चन। स्टार्टिंग से जैसे घर पे इंटरेस्ट था, बचपन से था, तो वही गली क्रिकेट खेलते थे, तो वहीं से मतलब आगे मतलब चलते गए। बचपन से ही खेलते थे, ऐसी बात नहीं क्रिकेट। तो क्या लड़के लड़कियां दोनों मतलब मिक्स होके क्रिकेट आप लोग खेलते थे या फिर आपकी कोई? मेरे घर पे मेरे कजन्स ही थे, जो मेरे साथ खेलते थे, बॉयज, सब बॉयज थे। तो हमेशा मैं घर से स्कूल आने के बाद मैं उनके साथ हमेशा खेलती थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़के हैं तो मुझे उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। तो उनके साथ बॉयज के साथ ही हमेशा मैंने क्रिकेट खेला बचपन में, तो वो चीज कभी फील नहीं हुई कि ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू। Anyone else? I think. Okay. हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये चैलेंजर ट्रॉफी में आपका मतलब आपका ट्रेनिंग मेथड कैसा लगा, मतलब आपको इंटरेक्शन जो है? रिपीट द क्वेश्चन। हेलो। मतलब चैलेंजर ट्रॉफी में तो सीनियर खेलते हैं, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करके कैसा लगा? पहले सबसे पहले इससे पहले मैंने जोन खेले थे, तो जैसे तानिया भाटिया अभी इंडिया प्लेयर है जो, तो नॉर्थ जोन की टीम में वो पहले भी मेरे साथ खेली हुई थी, तो जब मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया कि वो कैप्टन थी चैलेंजर ट्रॉफी में, तो फिर भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जो वहां जाके मुझे पता चला कि हाँ मतलब अच्छा है कि एक स्पोर्ट था उनका ने, मतलब एक रहता है कि एक थोड़ा जूनियर और एक सीनियर लेवल के जो प्लेयर्स रहते हैं, तो उन्होंने वो चीज मेंटेन करके रखी, तो उनसे अच्छा ही सीखने को मिला और उन्होंने भी हमें अच्छा ही हर चीज वहां पे शो करी अपनी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। If I think alright, एक आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ आपको, आप दोनों से पूछती हूँ कि आपका क्रिकेट में आपका ड्रीम क्या है और वो अचीव करने के लिए आपको किस तरह की और सपोर्ट चाहिए? ड्रीम तो यही है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, बड़ा लेवल खेलूं एक बार, तो अभी वो मेहनत कर रहे हैं। वैसे वो चीज जो मैंने चैलेंजर ट्रॉफी में सीखी है वहां जाके कि कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत गेम चेंज है थोड़ा, कि हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीज हम जम्मू आके मैंने अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज पे वर्क कर रही हूँ, तो वो जब धीरे धीरे वो चीज बिल्डअप होते जाएगी तो वो कहीं ना कहीं में भी कुछ आगे लेवल खेल पाए। Okay.
और भवनदीप, आपका क्या ड्रीम है? My dream is I just don't want to play for India team, but want to become one of the best players in India I have ever seen. दैट्स नाइस। और आपको वो अचीव करने के लिए कैसी सपोर्ट चाहिए आपको? सपोर्ट तो मिल रही है सबसे। अच्छी चीज़ है। और अपकमिंग जो T20 टूर्नामेंट है, हेलो, जी जी बोलिए। हाँ, जो अपकमिंग T20 टूर्नामेंट है, आप उसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं? उसमें भी हम अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कि अगर T20 लाइक IPL हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस वहां पे अगर कुछ होगी तो ही आप आगे के लिए सोच सकते हो। तो हम यहाँ कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें आगे। ओके। और अपनी स्टेट के लिए, जैसे अभी स्टेट के मैचेस होंगे तो नेशनल लेवल पे, तो हम फिर से एक बार T20 में भी हम क्वालिफाई करें और आगे अच्छे से मैचेस। ओके। आदित्य, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? Yeah, you're done. सॉरी, हेलो। Hello. या आदित्य, यू वांटेड टू आस्क अ आवाज आ रही क्वेश्चन? है? हाँ, आ रही है। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि सो दिस इज मोर लाइक अ क्यूरियोसिटी थिंग। एक जैसे आज भी सो देयर आर टीम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, काफी सारे स्पोर्ट्समैन भी आगे आ रहे हैं, क्रिकेट टीम तो है ही रणजी ट्रॉफी में वगैरह भी, लेकिन आज भी व्हेन यू से जम्मू एंड कश्मीर टू एन एवरेज इंडियन, वो दे थिंक ऑफ इट मोर फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आप लोग तो धीरे धीरे ये चेंज लेकर ही आओगे। There will be more and more cricketers from there. There will be other sportsmen inspired by you. लेकिन एक मैं जानना चाहता था कि it is such a beautiful place, and अगर समझो वहाँ पे if you had to choose one place in Jammu and Kashmir where you wanted to have the best stadium in the world, तो आप दोनों कहाँ पे खेलना चाहोगे? ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पे जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा स्टेडियम बना सकते हो and the whole world can talk about it? आपको क्या लगता है कहाँ पे होना चाहिए? हाँ, जैसे कि धर्मशाला का बहुत सुंदर स्टेडियम हम देखते हैं। मुझे लगता है कि अब अगर जम्मू एंड कश्मीर में स्टेडियम बने तो और भी सुंदर होगा। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसा प्लेस तो हमारे जम्मू के आसपास पत्नी टॉप है, जो एक हिल स्टेशन आ जाता है थोड़ा। हाँ, वहाँ पर अभी वहाँ पे काफी स्टेडियम है वैसे। हमारे, हाँ, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है स्टेडियम। ओके, तो आपके हिसाब से कहाँ पे ऐसा? क्योंकि अब जैसे अहमदाबाद का नया स्टेडियम बन गया तो उसका इतना हाइप हुआ है, पब्लिसिटी हुई है। आई थिंक अगर जम्मू में या कश्मीर में भी कहीं पे भी बन जाए तो इट बी वे बेटर देन, यू नो, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक एस्थेटिक्स का हो या जो सीनिक ब्यूटी है, एटलीस्ट इन दोज टर्म्स इससे तो बहुत अच्छा होगा। भवनदीप, आप कहाँ पे सोचते हो कि कहाँ पे ऐसा बन सकता है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में एक हिल स्टेशन पर ही बन सकता है, लाइक पत्नी टॉप, रियासी। वहाँ पे तो बहुत स्विंग होगी, अपने बैट्समैन को नहीं जमेगा। पत्नी टॉप एक लोकेशन है, और कौन सी है? बहुत सारी लोकेशंस है। होल जम्मू इज ब्यूटीफुल। वो तो है ही। Okay, I think we'll go for the last question now. हम पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता, आपको कोई सजेशन देना है आपके एसोसिएशन को इन टर्म्स ऑफ द T20 टूर्नामेंट, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है आपके वुमेन्स क्रिकेट के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप कोई सजेशंस देना चाहते हो आपके एसोसिएशन को? हाँ, वो प्लान तो ऑब्वियसली वो कर ही रहे हैं गर्ल्स के लिए कि कैसे अभी T20 मैचेस के लिए गर्ल्स का पूरा वो प्लान तो कर ही रहे होंगे। तो हम भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस यही है कि वो पहले भी उन्होंने वनडे में अच्छा प्लान किया तो उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिला। तो अभी भी वो यही चाहेंगे कि हम और इससे अच्छा और प्लान करके गर्ल्स के लिए तो
T20 के मैचेस हैं, हम उनमें भी अच्छा करेंगे। तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही कुछ प्लान करेंगे हमारे लिए। ओके ओके और इज देयर एनीवन एल्स हु वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? नहीं तो हम रैप अप कर सकते हैं। Sucharita, you're not audible. No, it was not me, I think. Okay. Someone else was saying something. Ananya, is that you? Are you trying to say something? Hello. Good evening, everyone. Yeah. I'm Ananya's mother. Actually, I was also listening to your talk. We are privileged that we have two best players among us, and they are sharing their experiences. I just want to know that what career options they see for themselves once they are through this phase of playing their cricket. How they see themselves as having successful careers after this. Am I audible? या Yeah. ओके, मैं थोड़ा इसको ट्रांसलेट करके पूछती हूँ। आप ये ओके, मैं पूछती हूँ। Okay. इफ यू गिव मी द परमिशन। ये यस प्लीज। जैसे क्योंकि मेरी डॉटर भी खेल रही है एंड शी इज स्टडिंग आल्सो, हम देखते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स जो है दे गो एंड दे प्ले, दे कम बैक एंड आफ्टर दैट देयर इज नथिंग मच to be done in terms of job or something like that. So how they see in those terms? जी सरला जी या पवनदीप, आप आंसर करोगे? आपको क्या लगता है इसके बाद आपका करियर ऑप्शन कैसा है? इसके बाद तो पढ़ाई तो हमेशा साथ में ही चलेगी, क्योंकि अब ऐसा टाइम आता है बीच में कि गर्ल्स के लिए कि आपको कहीं ना कहीं मतलब उतना एजुकेशन रखनी पड़ेगी साथ में। तो एंड द डे आपको अपनी एजुकेशन जॉब रखना पड़ेगा, वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सरला। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम कुछ इंटरनेट पे देखते हैं बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। आई थिंक कुछ काउंसलिंग हमारी गर्ल्स को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए कि आफ्टर प्लेइंग व्हाट आर डिफरेंट फील्ड्स दे कैन एंटर इनटू, जैसे हाउ दे कैन बिकम अ कोच और सम अदर एस्पेक्ट्स दे कैन पिक अप फॉर देयर करियर। आई थिंक एक चीज ये भी है कि खुद का इंटरेस्ट आप किस पे रखते हो। मतलब कईयों का खुद का इंटरेस्ट रहता है कि मुझे आफ्टर मतलब मैचेस अपने करियर का जो भी है, आप कितना खेल चुके हो, उसके बाद आपका खुद का इंटरेस्ट कितना है, किस चीज पे है, तो आप उसी पे ज्यादा फोकस करोगे। तो वो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि मेरा आगे का गेम को अलग, और उसके बाद क्या मेरा इंटरेस्ट है, मुझे किस पे वर्क करना चाहिए, तो वो चीजें आ जाती है उसमें। थैंक यू सरला, थैंक यू। If I may add, no, I think दोनों का एज डिफरेंस वैसा है कि आई थिंक भवनदीप हैज जस्ट कंप्लीटेड हर 12th स्टैंडर्ड एग्जाम लास्ट ईयर वाज इट, तो उनका नजरिया शायद अलग हो। उनके तो स्टडी शुरू ही है, तो मे बी शी हैजंट रीच्ड दैट स्टेज वेयर शी हैज टू थिंक अबाउट अ करियर आफ्टर क्रिकेट। उनका फोकस तो वही है कि अभी पूरा करियर क्रिकेट नहीं करना है। आई थिंक सरला may have a different approach. Again, she's older, she's already played cricket for a while. I think, like Ananya said, no, maybe it is for the association or people around these players to guide them in terms of इसके आगे क्या कर सकते हैं। I think sports psychology is interesting one. One of my cousins is pursuing that. वो एक है, coaching with objectives है, there's writing, there's commentary, there's lots of things that players need to be given that awareness. वो एक awareness देना जरूरी है शायद। Maybe that is something the association can look into. कि इनको सिर्फ क्रिकेट में, क्रिकेट के बाद भी इन्हें थोड़ा गाइडेंस मिले,
screen in Miller's house. Very true, Mr. Aditya. एक सवाल, इस बार क्या लगता है कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वर्ल्ड कप इस बार जीत पाएंगी, जो अभी चल रहे हैं? हम तो चाहते हैं इस बार तो जीते, और बहुत अच्छा भी किया उन्होंने फर्स्ट मैच में, कि वो वर्ल्ड कप जीत के ही आए। Okay. I think we can wrap up now. Okay. That was a beautiful, engaging session, and I'm so glad that I took a privilege to introduce Sarla Devi and Bhavandeep Kaur today. A huge thank you to you guys, and we sincerely hope all your dreams come true. And a huge thank you to everyone who are present here today. See you again next month. Have a good night and have a peaceful sleep. Good night. Thank you so much. Bye bye, everyone. Thank you. Bye bye. Bye bye.